वेलफेयर काउंसिल के अध्यक्ष फाउंडर कुंजन मेहता जी ने जो आज मुझे मॉडरेटर का काम दिया है, कोशिश करूंगा मैं सही तरीके से निभा पाऊं। मेरा सभी ऑनरेबल स्पीकर से निवेदन है, क्योंकि 6-7 पॉइंट है जो मैं फोकस करूंगा, उस पर एक मिनट की 1.5 मिनट की जो भी प्रतिक्रिया उसमें दे सके, आपके क्या व्यूज हैं वो हमारे जो भी अतिथिगण आए हुए हैं उनको बता सके, अपने सुझाव दे सके। सबसे पहले तो मेरा पॉइंट ये है कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू एज इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव फेस आर कॉमन टू इंडस्ट्रीज। तो कोहली साहब, मैं पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप अपना 1 मिनट का अपना भी दीजिए कि क्या चैलेंजेस है इंडस्ट्रीज के लिए, कि जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव के नाते, बिकॉज यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द उद्योग बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, क्या फेस कर रहे हैं। At the outset, I must express my thanks to Gunjan ji in particular, and all his team for organizing this second Global Industry Convention over here. Prior to coming to this stage, the honorable, like Mr. Sikri Saab, last week, doing safety, Silpi, Deputy General Manager, Ravi Kishore ji, and of course Bhavata. They have expressed a lot regarding the industry, but the job given to me is what are the challenges being faced by the industry in particular. So I restrict myself to that portfolio only. First and the foremost thing is, besides infrastructure, which is the prime need, there is not much of a help from the bureaucracy. In the sense, rules have been made, implementation is very bad. I will just give 1 or 2 examples to elaborate it. You want something, this is a time limit is 15 days. After 20 days you get the reply, your application is rejected, with no reason at all. How the industry can go ahead in case they have to again restart to think for anything for that matter, whether it is HICDC or it is DHBBN, etc. Improvement in the bureaucracy has to be taken to the top right. Unless we go for that, I don't think we can achieve the results. Next, there are 2 small things which fortunately we are having Deputy General Manager from Silpi and we are having people from DIC also. There are so many schemes of the government. They are not transferred to all the industries over here. Only very limited number of people know about it. Killing the utility of those things at all. We are proud to have our Prime Minister in Mr. Narendra Modi, Finance Minister in Madam Sitaraman. Policies are there, but execution is not there. Due to that, that is the biggest challenge right now with the industry. Small scale industry cannot come up. Many of them closed down not due to their fault, but due to the lack of education to that. My request particularly, these 2 departments which are sitting over here, they should try posing themselves the questions. How many industries they have gone through and how much they have picked up their standard. They should be proudly saying that, look, I as a Deputy General Manager have given to 100 industries, those who never approached me even. Similarly for DIC, there are so many schemes. I will not go for further, what you call it, subscription or anything of that sort, but even those schemes which are available are not handy with the industries. This is what I thank you very much, all of you, for giving a patient listening to me. Thank you very much. Thank you. गवर्नमेंट की तरफ से जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और मैं निवेदन करूंगा परवीन जी से कि वो भी
इस बारे में अपने विचार चैलेंज फेसिंग सबसे पहले तो सामने सभी लोग बैठे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं गुंजन मेहता जी को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। तो समय समय पर ये कन्वेंशन इस तरह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जिससे कि इंडस्ट्री के लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है। चैलेंजेस की बात करें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है मेजर, उसके बाद एक सबसे जो मेन इशू फेस होता है कि काफ़ी इंडस्ट्री हमने देखा है जो हमारी अनऑथराइज्ड एरिया में लगी हुई है। जैसे अभी हमारा दौलताबाद हो गया, बसई हो गया, वो अप्रूव नहीं हुआ है, तो वहाँ पर जो भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनको लोन की समस्या का काफ़ी सामना करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बैंक्स जो हैं वो वहाँ पर उनको लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये एक काफ़ी गंभीर मुद्दा है कि जैसे इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ पे लाखों लोग काम भी कर रहे हैं, अगर वो फर्दर उसमें एक्सपेंड करना चाहता है, फर्दर उसको अगर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं भी ये कमी जो है वो आ जाती है। तो इस तरह का भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि इंडस्ट्री चल रही है, चाहे वो अप्रूव एरिया हो, नॉट अप्रूव एरिया, उसके अंदर उनको लोन फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट में कई बार जिस तरह की पॉलिसी बन जाती है जो कि ग्राउंड लेवल पे वो देखने से इसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं जैसे पोल्यूशन बढ़ता है, अब उन्होंने ग्रैप लागू करते ही डीजल इंसेंटिव बंद कर दिए उठाकर जो अपने इंडस्ट्री के लिए, और ये बहुत ही एक उत्कंठन की बात है कि काफ़ी एरिया ऐसा है जहाँ पर आज की डेट में भी जो अपनी पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, वो डली ही नहीं है। तो वहाँ पे मजबूरी है लोगों की, क्या करें, क्योंकि बिजली 24 घंटे तो सरकार दे नहीं पा रही है, और जनसेट जो है मजबूर में चलाना पड़ता है। वो किसी का लग्जरी नहीं है, वो नेसेसिटी है, जब लाइट नहीं होगी तब उसको यूज़ किया जाता है। और जहाँ पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि पाइपलाइन का, वहाँ पर वो करे क्या, क्योंकि उसको फिर मजबूरी हो जाती है, उसको एक तरह से डीजल इंसेंटिव चलाना होता है। और लेकिन गवर्नमेंट का इस बारे में ध्यान नहीं है, सिर्फ एक पॉलिसी बना देते हैं कि वैसे बंद कर दिया जाए, ये बंद कर दिया जाए, उसका ये इफेक्ट नहीं देखते कि आपके पास उसका सेकंड ऑप्शन क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ी देखनी पड़ेगी। इंडस्ट्री लगा रहा है, जो अपना इंडस्ट्री लगाने वाला लोग हैं, उनके पास हर चीज़ की अपनी क्षमता है। वो जब आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास तो सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आ रहे हैं, बाकी तो सब अपना सक्षम है, जब उन्होंने इंडस्ट्री लगाई है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि अनावश्यक रूप से किसी को तंग ना किया जाए, और एक थोड़ी बहुत सहायता जो गवर्नमेंट से हम चाहते हैं वो उनको तुरंत उपलब्ध हो जाए। हमारे जो श्रमिक है वहाँ काम करते हैं, हर प्रकार की टैक्सी वो हमारे इंडस्ट्रीज के जो मालिक है वो देते हैं, और कई वर्षों से ये बात उठाई जा रही है। हम ये कह सकते हैं इस वक्त से कि जब रेजिडेंशियल कॉलोनीज को जो अनअप्रूव्ड है बहुत सालों से, उनको अगर अप्रूव किया जा रहा है, तो वही लोग इंडस्ट्री अगर अनअप्रूव्ड है, उन्होंने इतने उनके पास पैसे नहीं है, ये ऑप्शन से वो ले नहीं सकते। My team member to share my views on the challenges being faced by the economy or industry. Sir, challenges is definitely subject to discuss, but before that, I want to discuss regarding the economy, overall economy. No doubt we have specific problem of our areas, but here I would like to discuss first our the health of. मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उस पॉइंट को बाद में रख लेना, जो हम लोगों ने वो उसी पे आएंगे, उसी पॉइंट उसी पे आएंगे, प्लीज। क्योंकि आज हमारी जो इकोनॉमी है, इट इज ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। इसमें there are no two opinion, and such a strong footing is due to so many reasons, so many factors. Like we have a large pool of trained technical talent. We have very well-established financial institution, well-placed financial institution backed by the government. As and when government launched some schemes for their implementation, they back the banks, financial institution. So without all these factors, we have very good economy as on today. But at the same time, we have the challenges in the sense, as on date we are having our industrial growth to 6 to 7%. But we are required to achieve furthermore. We have to take it to 9, 10 and 11%. With that, we may be able to give our currency strength. As and when the government, our country's currency gets strength, we attract foreign capital. When we attract foreign capital,
our interest rates get lower. Now, here I am coming challenge. We are facing very high interest rates. With the result, our cost of borrowing is very high. With the result, our profitability, our margins are becoming less and less. In further, we are not able to reinvest. So this is a chain reaction. In economy, it is a chain reaction. If our is a positive in the economy, all chain reaction will be positive. So our challenge is when we are not having cheaper rate of interest, here the government has to play its role. As I know, in the 90s, SIDBI was formed in order to give cheaper loans to the SMA or MSME sector. And at that time, I still know when we used to go to banks, normal banks, they give us 10% or 12%. And when we go to SIDBI, they give us 8%, 7%. And the difference was financed by the SIDBI to that bank from where we originally secured the loan. So that way, government played its role. Now again, government has to play its role in financing the MSME sector or SME sector so that they may sustain their growth. So these are the challenges. Secondly, in order to establish your business, we need land, we need then we need building for doing our business. But for all these things, we have to enter a very heavy capital. So here again, government can play its role. So there are many other infrastructure. We cannot match our infrastructure with the developed economy as of today also. Here again, government can play. So these are the challenges we face. It is therefore requested that these challenges, if are removed, we are definitely grow further and further. Thank you very much. He said that there is no support from the government bureaucracy. That's a very true and very point. First of all, the government, the policies, whatsoever the government policies brings in for the industry, they implement it on an immediate basis rather than giving any time to synchronize the industry with the policies. Just like in GST also, etc., the income tax policy, etc., and going on the tax terrorism, I will say. So the industry is not able to cope up with these policies suddenly. So industry needs always a time because we are mostly, the India is based on our MSM industry. We are not only the big corporate, few corporates are there. They can cope up with the latest policies, but not the MSME. So government should think of this, that the policies, implementation of policy should be given a specific time, at least a year, to the MSM industry. And as my friend said that finance is one of the major factors. Our country is an agriculture-based industry. So our economy flows on the agriculture base. The MPA, etc., the government has brought a 90 days MPA as per the basic norms of the foreign countries. But our economy is as agriculture, so it should be the 180 days so that the Indian industry can survive. Even if we see the large corporates like L&T, Tata, you can name any big industry, they won't give the payments in less than 180 days to the MSME industry. Mostly MSME industry will accept this fact. Because finance is the most important and crucial factor for the industry. So government should think for the lower rate of interest as said by my colleague, and as I am requesting for quite a long period that it should be MPA period should be 180 days so that MPA industry, the MSM industry should survive. And one of the most important factors is that हम लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इंडस्ट्री हमारी क्यों नहीं ग्रो कर पाती. हमारे यहाँ पे थॉट प्रोसेस, हमारा एजुकेशन लेवल इतना लो रहा है लेबर लेवल पर कि हम लोग कभी भी एक स्किल लेबर नहीं ला पाए. तो उसके ऊपर गवर्नमेंट वर्कआउट कर रही है लेकिन स्टिल इतना इफेक्टिवली वर्कआउट नहीं हो रहा. एंड जिसकी वजह से हम लोग इंडस्ट्री के लोग एक अनएजुकेटेड लेवल के ऊपर लेबर क्लास के अंदर उलझे हुए और हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती. मैं वैसे पर्सनल लेवल पे एक्चुअली सभी को कहूँगा कि I'm employing many ITIs and diploma order people, young people,
जैसा सर ने कहा, सिकरी साहब ने कहा कि यूथ को और एक्सपीरियंस लोगों का कॉम्बिनेशन बनाइए तो विल गेट द आउटपुट। और माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे आईटी और डिप्लोमा होल्डर्स को एम्प्लॉय किया है, बहुत ही कम 25% एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, एंड वी आर गेटिंग अ बेटर प्रोडक्शन, बेटर क्वालिटी देन रूटीन व्हाट वी आर डूइंग लाइक दैट वे। एंड अनअप्रूव्ड इंडस्ट्री के लिए मैं हमेशा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा, डीएससी के लोग भी यहाँ बैठे हैं, कि आप लोग सरकार एक ऐसा इंडस्ट्री एरिया डेवलप करते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, जैसा चाइना के अंदर है कि आपको 2 रुपये मीटर के ऊपर लैंड और शेड बना बनाया मिलता है। एमएसएम इंडस्ट्री को बना के उसे किराए के ऊपर या इंडस्ट्री को सेल कर दे, बिकॉज एमएसएम इंडस्ट्री की कैपिटल अगर बिल्डिंग बनाने में जाएगी तो वो वर्किंग नहीं कर पाता है, या उसे बैंक के बोझ के नीचे आ जाता है वो, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो आई एम होपिंग फॉर कि हमारे मेरा भी 30 साल का तजुर्बा इंडस्ट्री को, ये कुछ वैलिड पॉइंट सरकार को इसके अंदर ढूंढने चाहिए और उसके ऊपर भी वर्किंग करनी चाहिए। धन्यवाद। मिस्टर तिवारी। पूरी दुनिया एक तरीके से बड़े डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है और बड़े फ्रेजाइल टाइम से गुजर रही है, किसी को पता नहीं है कि कल नेक्स्ट न्यूज क्या आएगी। सिमिलरली अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज अब रियल लाइफ में आप देख सकते हैं। अभी अगर हम देखें आज की डेट में ऑफिस आना, फैक्ट्री आना एक चैलेंज हो गया, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका ट्रैवल टाइम कितना होगा। सडनली अगर रेन आ गई तो आपको पता नहीं है। सिमिलरली अगर आप देखें थोड़ा सा पीछे जाएं, जून के अंदर में जिस तरीके की गर्मी के हालात थे उस टाइम पे काम करना मुश्किल है, और इन सब हालात के अंदर में अगर आप देखेंगे तो जो डिस्ट्रप्शन है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली इंडस्ट्रीज को फेस करने पड़ रहे हैं। वो चाहे क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसकी वजह से कॉस्ट के इश्यूज हैं, मटेरियल सप्लाई के इश्यूज हैं, सिमिलरली स्किल लेबर के इश्यूज हैं। आपका उसके सामने क्या है कि जो इंडस्ट्री जिनको आपको इंटरनेशनली कम्पीट करना है उन सब के अगेंस्ट में इंडियन इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी सारी डिफिकल्टी के अंदर में उनको सर्वाइव करना पड़ता है। मतलब अभी भी हम उसी दुनिया में जी रहे हैं जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया की रोड पे गड्ढे आज तक भरे नहीं गए, और हमसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम जाकर के जर्मनी, चाइना, यूएस उनके प्रोडक्ट से कम्पीट करेंगे। तो वो आदमी कभी गड्ढे से ऊपर सोच ही नहीं पाया तो कैसे उस पर जाएगा। तो इस चीज में सिमिलरली आज की डेट में लैंड रिसोर्सेज, जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो ओवर एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। लैंड के प्राइसेस सिटीज के किसी भी सिटी में, हम अभी लैंड एक फैक्ट्री लगाने के लिए साउथ में देख रहे थे, हमने आंध्रा से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु सारे एरिया चेक कर लिए। परवल में हमारी फैक्ट्री अभी है करंटली। आप किसी भी सिटी के आसपास के लैंड एरिया को टच नहीं कर सकते, और जिस एरिया में आप सोच सकते हो कि ये लैंड, चलो ये फैक्ट्री लगाने के लिए ठीक है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ पेपर पे एक इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो कब आएगा ये सरकार को भी नहीं पता होता है, और उसकी लैंड का एक हाइपोथेटिकल प्राइस रख करके उसको डबल कर दिया जाता है। तो इन सिचुएशन में मेरे हिसाब से 2-3 चीजें करी जा सकती हैं, क्योंकि चैलेंज एंड ऑफ द डे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जाने जाते हैं। पहले बेसिक चीज क्या है कि हमको कलेक्टिवली समाज को समझाना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रीज जो है वो देश का कितना भला करते हैं। समहाउ ये मानसिकता बना दी गई है देश के अंदर में कि किसान तो जो है अन्नदाता है और उद्यमी जो है वो चोर है। अनफॉर्चुनेट, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट समाज का ऐसा दायरा बना दिया गया सोचने का। सारे जॉब जो है वो इंडस्ट्रीज क्रिएट करती है, और इंडस्ट्रीज में भी एमएसएमई उसके लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो एक तो रिस्पेक्ट फॉर इंडस्ट्री एंड रिस्पेक्ट फॉर बिजनेस मेरे हिसाब से वापस से समाज में लानी चाहिए। दूसरा जो है वो हमें हमारा हमेशा जब हम चैलेंज की बात करते हैं तो हमारा मोड ये हो जाता है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को कुछ कह रहे होते हैं, और वो एक वैक्यूम में बात जाती है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं। बट कई सारे सोल्यूशन हम अपने लोकल लेवल पे कर सकते हैं। सारी जो प्रॉब्लम्स है वो कई सारी लोकल होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर रोड पे मान लो वाटर लॉगिंग है तो उसका शायद सोल्यूशन लोकल लेवल पे ढूंढा जा सकता है, चंडीगढ़ में बैठा हुआ ऑफिसर उसका सोल्यूशन नहीं कर सकता है। सिमिलरली अगर हम अपने लेवल पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम या वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को अपने लेवल पे डील करेंगे तो वो बेटर हो सकती है। तो मेरे हिसाब से हमको देखना ये भी चाहिए कि हम उन चैलेंजेस को कैसे देख सकते हैं। और एमएसएमई की मेरा सजेशन तो ये है कि जो सबसे बड़ी पावर है वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और कोलैबोरेशन को हमने इनेबल करना चाहिए कि जहाँ पे हम एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकें और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ जा सकें।
थैंक यू। थैंक यू जोड़ साहब। योगा मुंबई भी हमारे बीच में है, जो चंडीगढ़ से आए हैं, पंजाब हरियाणा के प्रैक्टिस करते हैं। गगन जी, जितने भी ये चैलेंजेस अभी हमारे ऑनरेबल स्पीकर ने बताए हैं, इसका कोई लीगल एस्पेक्ट भी आपके सामने है जो हमें आप ये बता सकते कि हम किस तरीके से इन चैलेंजेस को सरकार के सामने रखे और सरकार नहीं करती है तो उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए। और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक तो जो MSME की जो पॉलिसी आई थी कि भाई 45 डेज के अंदर हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जो पेमेंट्स का जो सबसे बड़ा मुद्दा है सेक्शन 45 में वो है। और दूसरा हमारा जो ये तो रिकवरी का हो गया, और इसके अलावा जो एक बात हो रही है आर्बिट्रेशन सेल की, क्या आर्बिट्रेशन सेल जो है वो बनाने से भी कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। रिकवरी की मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात आपसे मैंने करी कि भाई जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई यहाँ दो एस्पेक्ट्स हैं। वन इज द इश्यूज व्हिच आर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, द सेकंड इशू इज द इश्यूज व्हिच आर इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन और द सिस्टम। तो जहाँ तक की बात है गवर्नमेंट वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम या फिर लैक ऑफ फंड्स या फिर लीगल नॉलेज नहीं है, लीगल अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का नहीं है। तो प्रैक्टिकली परसीव करता हूँ मैं सोसाइटी में रहते हुए, काफ़ी क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, इंडस्ट्रीज में डील करते हैं क्लाइंट्स को। तो सबसे पहले तो उनके बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर तो लीगल सेल्स हैं, उनको अवेयर करने के लिए, पॉलिसीज ड्राफ्ट करने के लिए या उनके एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करने के लिए या फिर अदर लीगल वर्क के लिए या फिर पॉलिसीज एक्सप्लेन करने के लिए, तो उनके लिए तो लीगल सेल्स हैं। बट जो छोटा मध्यम या छोटा कारोबारी है, माइक्रो या मीडियम स्केल का, वो अफोर्ड नहीं कर पाता लीगल पैनल्स को, लीगल एडवोकेट्स को, और थोड़ा सा एक रिलक्टेंट एटीट्यूड भी है जो इंडिविजुअल सोसाइटीज का कि एडवोकेट से या कोर्ट से थोड़ा घबराहट है, फेथ नहीं है जुडिशियल सिस्टम के ऊपर। तो इस वजह से थोड़ा सा अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। और सेकेंड इज द इश्यूज विद रिगार्ड टू दी जो मेरे परसेप्शन के हिसाब से वन ऑफ द मेजर ग्लोबली 82% ऑफ द इंडस्ट्रीज आर फेलिंग बिकॉज ऑफ द कैश फ्लो प्रॉब्लम। कैश फ्लो प्रॉब्लम इज सच ए बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपको पेमेंट, आपने इनोवेट कर लिया, आपने मैन्युफैक्चर कर लिया प्रोडक्ट, आपने उसकी मार्केटिंग कर ली, आपने उसको सप्लाई कर दिया, सप्लाई होने के बाद आपको पेमेंट ही नहीं आया अल्टीमेटली, एंड द पेमेंट ही नहीं आया तो आपका जो बिजनेस का लॉस है उसकी वजह से 82% इंडस्ट्रीज ग्लोबली फेल कर। और उसके उस इंडिविजुअल के पास, उस इंडस्ट्री के पास ऑप्शन क्या है? लीगल ऑप्शन, गोइंग टू द कोर्ट। और कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको पता है, कोर्ट में 138 के केसेस आज की डेट में प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप आज एक दावा लगाते हो, आज एक कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हो 138 की, फर्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग जो आपको मिलेगी वो 6 मंथ्स बाद की मिलेगी। डिस्पाइट द फैक्ट कि 138 की प्रोसीडिंग्स आर ए समरी प्रोसीडिंग्स, वो जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाना चाहिए उसका तकरीबन 1 साल में, बट वो देयर वर कंप्लेंट्स, देयर वर लिटिगेशन पेंडिंग सिंस 1 डिकेड आल्सो। सो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम इज अ सॉल्यूशन। जैसे कोर्ट्स हैं, कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते इंडस्ट्रीज के लोग, और इंडस्ट्रीज के लोग तो वहां जा भी रहे हैं तो दे आर नॉट गेटिंग ए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम इज इन आर्बिट्रेशन एक्ट। सबसे पहले तो एक बिट है, मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो आर्बिट्रेशन कंसल्टेशन एक्ट है, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ मीडिएशन बिटवीन द पार्टीज। जो आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड, दैट इज हैविंग द इक्विवेलेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट में डिस्प्यूट के लिए। पहला तो लेट अस सपोज कि ए ने बी से पैसा लेना है, तो पहले वो दावा डालेगा या केस डालेगा कि साहब मैंने पैसा लेना है, तो वो डिसाइड करती है व्हाट आर द फ्रूट्स, आपने पैसा लेना है और कितना लेना है। फिर दूसरा प्रोसेस होता है, उसके लिए एग्जीक्यूशन डालनी पड़ती है आपको कि पैसा लेने के लिए जो आपकी डिग्री पास हुई है उसको एग्जीक्यूट करना है,
उसके लिए कोर्ट के पास पावर होती है कि उसकी अटैचमेंट हो सकती है प्रॉपर्टी की, उसकी अरेस्ट हो सकती है जिससे आपने पैसा लेना, दैट इज कॉल्ड जजमेंट एंटर। तो जो पहला प्रोसेस है, दैट प्रोसेस ऑर्डिनरी स्पीकिंग दैट इज टेकिंग 5-6 more than 7 years also। तो कभी एंडलेस प्रोसेस है, ठीक है, तो उसको कट शॉर्ट किया जा सकता है, उसको आप 2-3 महीने में या 4 महीने में भी आप रिजॉल्व करा सकते हो। आपको क्या करना है उससे पहले कि अब आप अगर एटीएम में भी जाते हो तो वो आपको लैंग्वेज पूछता है, आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं हिंदी में, तो आपको जब भी किसी से व्यापार करना है तो उसमें 2 चीजें हैं कि एक तो रिटन एग्रीमेंट, वो रिटन एग्रीमेंट के नीचे क्लॉज हो कि if there is any dispute arisen between the parties that shall be referred to a arbitrator। Now there can be 2 kind of arbitrators, one is the sole arbitrator और second is the institutional arbitrator। sole arbitrator हम उसमें उसको कहते हैं कि जिसमें एक इंडिविजुअल कोई भी दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड कर सकती है, या फिर सेक्शन 11 सब क्लॉज 6 में हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। हाई कोर्ट क्या करता है कि उसमें एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स या एडवोकेट्स को एक आर्बिट्रेटर की तरह अपॉइंट कर देते हैं। तो जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है उसके पास लेटेस्ट पोस्ट, उसके पास तो इतने मैटर्स नहीं होंगे जितने एक अपना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलेगा। पहली बात है जो उनका ऑफिस होगा जहाँ पे आपने प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन भी आप फिक्स कर सकते हैं। लेटेस्ट पोस्ट कि आप एग्रीमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि if there is any kind of dispute between the parties, the matter shall be referred to the arbitrator and the seat of the arbitrator shall be JA house। तो आप यहाँ पे भी arbitration चला सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे आप एक arbitrator बैठे, he will act as a judge and the matter will be resolved between both the parties by way of a court order that will be called as a award। वो that is having an equally effect जो जज ने वहाँ पे पास किया जिसको आपको 5 साल या 6 साल। इंडस्ट्री जो काम करती हैं डिफरेंट एटमॉस्फेयर में काम करती हैं और उसके लिए टेम्परेचर जो है दैट प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। द एफिशिएंसी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट यू गिव इट टू देम। अनफॉर्चुनेटली or maybe unfortunately there are so many weathers in this country which affect a lot to the individuals। तो उसके लिए तो हर एक फैक्ट्री को अपना अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है particularly rainy season in particular that is not controllable by the industry at all। There a lot of help is required from the government and government alone। बात वहीं पे आ जाती है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, अगर सैनिटेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, well all these things can be covered by the government only। और इंडिविजुअल के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम खुद अपना रोल प्ले नहीं करते हैं। हम अपने ड्रीम्स को अपने बाहर अपने बगीचे बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। उसके लिए we have to educate ourselves। Unless we help ourselves, no government can help us। तो इसके लिए I personally feel that we are equally partner in creating the problem। Thank you very much। अपील भी करूँगा कि हमें एक पौधा तो हर साल जरूर लगाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है जिस हिसाब से एयर पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से एक्सट्रीम वेदर हम फेस कर रहे हैं। गर्मियों में हम गर्मी 50 डिग्री के आसपास जा रहे हैं, जब सर्दियाँ आती है तो हम माइनस में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा काम भी इफेक्ट होता ही है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है वो एक लेवल तक काम करने के लिए बनी हुई है। उसके अगर एक्सट्रीम लेवल पे कोई कंडीशन उसके सामने आएगी तो हमारा काम का जो हमारी कैपेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। दूसरा भी हम देख रहे हैं जैसे रेनी सीजन है, इसके अंदर तो हमारी सप्लाई जो चेन है वो तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, क्योंकि जो टाइम पे हमारा कोई भी माल जाना होता है वो कभी भी फिर टाइम पे पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती है, जाम लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम अगर कोई इस तरह की कंडीशन आती भी है, कोई एक्सट्रीम कंडीशन भी आती है, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर होगा तो हम उसके जल्दी से जल्दी उस चीज़ से निपट सकते हैं। थैंक यू सर। क्लाइमेट चेंज या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स हैं उनकी एक बहुत बड़ा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनता जा रहा है।
इवन अभी हमने देखा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएसए में, उसमें भी दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के द्वारा जो है क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर स्पेशल वो डिबेट्स कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज का इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है हर एक्टिविटी पे हमारी सोसाइटी में, उसकी वार्निंग मिले। सरकार की तरफ से दबाव करेक्ट सर। और ये जो आज हम फेस कर रहे हैं, ये जनरेटर्स हैव बैंड की आल्सो ड्यू टू क्लाइमेटिक प्रेशर है, रिड्यूस कीजिए। इसीलिए ये कमेटी बनी एनवायरमेंटल, तो वो उसी की वजह से आज हम ये फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा लार्जर इशू है। तो उसमें ये हमारी 1-to-1 जो लेवल फैक्ट्री टू फैक्ट्री वो नहीं उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये वेरी वेरी बिग इशू बात है। तो इसीलिए ये हमें फेस करना पड़ रहा है। प्रेसिडेंट नीमा मिस्टर राजेश गुप्ता प्लीज मैं अपनी बात सभी ने कहा बिल्कुल क्लाइमेट कंट्रोल एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर मैं थोड़ा छोटा सा पॉइंट लूँगा। हमारे इंडिविजुअल रोल तो वाकई इंपॉर्टेंट है कि रेन वाटर आता है उसका ड्रेनेज सिस्टम को इस तरीके से करें कि वो हार्वेस्टिंग सिस्टम में जाए। एक टिश्यू पेपर को यूज़ करने में करीब 33 गैलन पानी यूज़ होता है। एक टिश्यू पेपर जो हम यूज़ करते हैं 35 गैलन वाटर यूज़ होता है उसके प्रोसेसिंग के अंदर। अगर हम अपना टिश्यू भी बंद कर दें यूज़ करना तो हम इतना पानी बचा सकते हैं। और इसके ऑब्वियसली हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेड़ लगाना, ऑक्सीजन उससे मिलती है। पुराने ज़माने में होता था पेड़ के नीचे हम खड़े हुए थे, ऑक्सीजन मिलती थी, पोल्यूशन कम होता था। अगर आप अमेरिका वगैरह में जाएंगे वहाँ पर इतने ट्रीज हैं, बिल्कुल आसमान क्लियर है, पानी क्लियर है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। हम लोग कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी के साथ साथ सरकार का बहुत बड़ा रोल है। मैं आज अगर मैं नोएडा जाता हूँ, अगर मुझे कहीं वॉशरूम रास्ते में गाड़ी में जाते हुए आता है तो मैं देखता हूँ जगह जगह पे वहाँ पे सुलभ शौचालय बने होते हैं, तो मैं अपनी गाड़ी वहीं रोकता हूँ। मैं सड़क किनारे पेड़ के नीचे की वेट नहीं करता। और इसी तरीके से अगर सरकार कूड़ेदान जगह जगह पे लगा दे तो लोगों के हाथ में जो सामान है कूड़ा उसके अंदर जाएगा। सरकार ने प्रेशर एक तरह से इंडस्ट्री या पब्लिक के ऊपर से डाला है कि आप लोग इसको ठीक करें, लेकिन सरकार का भी रोल है। जैसे जनरेटर सिस्टम के लिए बैन किया गया कि आप लोग सोलर लगाएं, जनरेटर नहीं लगाएं, RCD वगैरह लगाएं, गैस से जनरेटर यूज करें। उसके अंदर सरकार ने लेकिन जो गैस देने वाली कंपनीज है उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला, बिकॉज वो बिग कॉर्पोरेट्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर खाली प्रेशर डाल दिया। अगर यही जनरेटर्स अच्छी फाइनेंशियल स्कीम से अवेलेबल हो तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई इंडस्ट्री का आदमी है जो उसको चेंज नहीं करना चाहेगा। एज ए मीवा एज एसोसिएशन हमने मानेसर में 1 लाख पेड़ लगाए, लेकिन हमें सरकार से कोई कॉर्पोरेशन नहीं मिली कि उसको मेंटेन करने के लिए अगर हम HSIDC से या डिपार्टमेंट से कोई मदद मांगे MCM से तो हमें कोई मदद नहीं मिलती है। तो इंडस्ट्री और इंडिविजुअल भी करना चाहते हैं, लोग एजुकेट भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में तालमेल की कमी है, जिसकी वजह से हम लोग इफेक्टिवली अप्लाई नहीं कर पा रहे। धन्यवाद। तिवारी जी तो आप तो इस पॉइंट को कह चुके हैं, अगर कहना चाहें लेवल पे है उसको अगर हम साइड छोड़ दें, NCR का क्लाइमेट वैसे भी हार्श क्लाइमेट है। आपको तीनों वेदर फेस करने पड़ते हैं, विंटर भी, मानसून भी और समर। इसमें मेरे हिसाब से एक काम जो किया जा सकता है जो बहुत सिंपल है, 2 काम हम कर सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल कंपनी के लेवल पे और एक एसोसिएशन के लेवल पे अगर इसको रेगुलर एजेंडा पॉइंट बनाया जाए। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं वाटर लॉगिंग की, बट वाटर लॉगिंग का बेसिक इश्यू शुरू होता है स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के फ्लॉगिंग से। अगर कोई ड्राइव चलाई जाए, जैसे हम पेड़ लगाने की ड्राइव शुरू कर रहे हैं, समर के टाइम पे एसोसिएशन मिल करके गुड़गांव में मानेसर की मान लो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के लिए कलेक्टिव एक ड्राइव चलाए, तो उसका इफेक्ट ये आएगा कि मानसून में आपको इफेक्ट कम करने पड़ेगा। सिमिलरली इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो इफेक्ट है जो वर्कर्स हैं जिनके ऊपर सारी कुछ बात डिपेंडेंट है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं घर के लेवल पे भी और इंडस्ट्री के लेवल पे। तो उनके लिए कुछ फैसिलिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है, छोटी से छोटी इंडस्ट्री भी डेली बेसिस पे 5000 से 10,000 लीटर पानी जनरेट कर सकती है जो नॉन पोर्टेबल काम पे आ सकता है। जो पॉन्ड होते हैं जो पहले होते थे, हरियाणा के अंदर बहुत सारे पॉन्ड पहले से होते थे, वो पॉन्ड को अगर आप रिवाइव करते हैं इस ट्रीटेड वाटर से तो वो आपके टेम्परेचर पे मिटिगेशन में काम होता है। तो ये छोटे छोटे स्टेप हम अपने लेवल पे ले सकते हैं, सरकार को तो बहुत कुछ करने की। ठीक है तिवारी साहब, थैंक यू वेरी मच। लास्ट पॉइंट और मैं जैसा कि आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन के युद्ध से हमारी सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो रही है और कई बार नेचुरल डिजास्टर भी होते हैं। इससे किस प्रकार से ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्रीज के लिए जो देखने में आया है।
तो मैं अपने ऑनरेबल स्पीकर से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर कोई प्रकाश डालें और अपनी बात को वो कहें और अभी कहें कि मेरे पॉइंट क्या है। प्लीज। नमस्कार जी। जहाँ तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस का ताल्लुक है वो तो दुनिया भर में हमारे हाथ में नहीं है, कहीं पर भी कभी भी हो सकता है। इसराइल हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे और सूडान हो या कोई और कंट्री हो, उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। वी हैव टू फाइंड ए वे आउट ऑफ दिस। लाइक पीपल आर टेकिंग, India is taking oil from Russia and sending it to Europe, right? This is one way of making money as well, using geopolitical situation to our own benefit. So every country, every businessman, every organization needs to think about themselves. Thank you. बोली साहब। जैसा अभी मेरे पहले स्पीकर ने बोला कि ये हमारे हाथ में तो है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर में छोटी सी एक चीज हट के जरूर कहना चाहूँगा कि विच इज ए डिजास्टर बी क्रिएटेड बाय आवरसेल्व्स, इन द सेंस आपको फायर सर्टिफिकेट लेने में maybe 10,000 लीटर वाटर या 20,000 लीटर वाटर के टैंक लगाने पड़ते हैं। ये हम एक डिजास्टर को क्रिएट करते हैं। जब भी जब 20 industries or 40 industries can combine together and can have a tank, overhead tank, etc., where they can pull up and make a storage for that. और उसके लिए किसी भी इंडिविजुअल फैक्ट्री को पानी स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा ये सजेशन है कि हम ना कि वेट करते हुए कि नेचुरल डिजास्टर की जो हम डिजास्टर क्रिएट कर रहे हैं बाय द गवर्नमेंट, बाय द फायर डिपार्टमेंट, उसको अवॉइड करें। थैंक यू। ये हमारे किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बेटर रखेंगे और जितना अभी बात हो जाती है नेचर कैसे किसी तरह के हो सकते हैं, कुछ तो हम क्लाइमेट कंट्रोल जो हमारा ये हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर हम इसमें कंट्रोल करने के लिए जो काम करें, जैसे पेड़ लगाएं, नेचर जो हमारे रिसोर्सेज जैसे पोन्स वगैरह थे उनको फिर से रिवाइव करें, तो काफ़ी हद तक हमारे ये जो नेचर के डिजास्टर होते हैं ये इनसे बचा जा सकता है। क्या क्वेश्चन था सर? सुना नहीं। क्या क्वेश्चन क्या था? क्लाइमेट चेंज और सेम एक नेचुरल जो हमारे ऊपर डिजास्टर होता है इसका हमारे हाथ में तो सर डेफिनेटली कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के दोनों का मेजर रीजन अगर आज हम सोसाइटी में देखें, दुनिया में देखें, पानी एक बहुत बड़ी समस्या नेचुरल डिजास्टर की। पानी के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम लोग जैसे मैंने कहा कि हमारे सबने कहा कि वाटर बॉडी वगैरह रिवाइव की जाए, या हमारी नदियों का आपस में मिलान कर दिया जाए, जो पानी कहीं पर बाढ़ आती है और कहीं पर सूखा पड़ा है तो पानी वहाँ पर फ्लो कर सकता है। एंड वेस्टेज ऑफ वाटर या वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंड में हमने जगह जगह लैंड में बिल्डिंग बना दी है या डैम क्रिएट कर दिए हैं या सड़कें बना दी हैं, उससे कि नेचुरल जो एक सिस्टम था वो डिसरप्ट हो गया। चाहे वो पेड़ उखाड़े गए हैं जिसकी वजह से धूप ज़्यादा हो गई, सड़कें बनने से टेम्परेचर राइज हो गए हैं। अल्टीमेटली उसके लिए हम और सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। सरकार भी उसके ऊपर कोई इफेक्टिवली काम नहीं कर रही। जगह जगह पे इंडस्ट्री हम लोग लगाते हैं और रादर देन उसकी जगह पे सरकार को चाहिए कि हाइट इंडस्ट्री के अलाउ कर दे, चाहे एयरपोर्ट से जो दूर है जहाँ पर हाइट के नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं है तो वहाँ पर सरकार इंडस्ट्री ऊँची बनाकर फैसिलिटी देके तो लैंड का यूजर कम कर सकती है, जिससे कि हम लोग ज़्यादा पेड़ लगा सकें और जो हमारे पानी को इस चीज़ को फ्लो करने की जगह चाहिए वो प्रॉपर मिल सके। तो ऑब्वियसली हम सभी लोग जिम्मेदार हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग पर्सपेक्ट करेंगे, जैसे पेड़ लगाना है कुछ है तो नेचुरल डिजास्टर कम हो सकता है। धन्यवाद। एक तो क्या है कि ये जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसमें डिस्ट्रप्शन कभी भी और कहीं से भी किसी भी अमाउंट के आ जाते हैं, तो हम प्रिपेयर रह सकते हैं, अपने एटीट्यूड को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, क्योंकि जैसा हम चाह रहे हैं या जैसा हम झेलते रहे हैं या करते रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो चल पाएगा, उसको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। सेकेंड चीज़ क्या है, जैसे अगर मैं तो जापानीज कंपनी के संग काम करता हूँ, उनसे अगर हम सीखें तो उनके यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे भूकंप आते हैं, तो हर सिटीजन के लेवल पे हर जो लोकल एरिया है उसके लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है कि इस टाइम का आपको क्या करना है। तो मान लो लोकल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लेवल पे
इंडस्ट्री को और वर्कर लेवल तक को अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए कि अगर वाटर ब्लॉकिंग होती है तो हम क्या चीजें कर सकते हैं, पानी की कमी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने हमारे लोकल एरिया में काम किया था जब इस समय एक्सट्रीम हीट कंडीशंस थी, हमने जो है वो मिल करके कलेक्टिवली जो हाइड्रेशन की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको आपस में स्प्रेड किया, कलेक्टिवली एग्री किया कि एयर कंडीशनर इस पर्टिकुलर आवर्स में कम करेंगे। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स हम मेरे हिसाब से अपने लोकल लेवल पे कर सकते हैं। दिल्ली में मूवमेंट हुई तो उसके लिए सुना है, पर आपको ये मालूम है हमें बेसिकली फ्रीडम फाइटर था जो फौज में थे, एंड जब वहाँ पे फौज में 1971 की शायद जंग या 65 की जंग में उन्होंने आर्मी मरते देखे तो उनका मन दुनिया से उठ गया। रालेगंज शिरडी उनका गाँव था महाराष्ट्र में, पीछे से बहुत ही ब्रॉड टोन एरिया था, और ना वहाँ पर सभी लोग शराब में पड़े रहते थे और कोई फसल वगैरह खेती नहीं होती थी। अन्ना हजारे जी ने एक मूवमेंट चलाई जिसमें उन्होंने गाँव की औरतों को साथ में लिया, एंड पहले तो उन्होंने शराब के ठेके तोड़े और उसके बाद उन्होंने गांव की डाउन स्ट्रीम पे, गांव ऐसा था कि 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो जब बरसात का पानी आता था उन्होंने एक अर्थ डैम बनाया एक जगह से 3 पहाड़ियों को बंद करके, और उस पानी का रास्ता दिया जमीन के रास्ते से कुएं खोद के गाँव के अंदर। एंड कुछ समय के बाद महाराष्ट्र का अकेला गाँव था जो 2 फसल देता था, जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं होती थी, ड्रिप इरिगेशन से वो उसको खेती करते थे। वैसे बहुत सारी चीजें हम लोग सोसाइटी कर सकते हैं। सर मेरा परसेप्शन ये है कि नेचुरल डिजास्टर भी डिवाइड ऑफ 2 काइंड्स, वन इज नॉट इन योर हैंड। जून की वेकेशन होती है, एवरीबॉडी इज गोइंग टू मनाली, एवरीबॉडी इज गोइंग टू उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में हिमाचल में जो नेचुरल डिजास्टर हुआ, इतना रेनफॉल हुआ, सब सड़कें वगैरह टूट गई, तो व्हाई वी पीपल आर नॉट बीइंग अवेयर कि जब इतने लोग इतना बर्डन कर देंगे वहाँ पे हिली एरिया में, तो natural disaster is a reaction to the what we are doing. So ultimately एक तो हमें सेल्फली एनालाइज करना चाहिए कि क्या नेचर के लिए हमारे लिए ठीक है नहीं है। सेकंड थिंग इज इन केस एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, बिकॉज छोटे-छोटे इश्यूज होते हैं जैसे वाटर लॉगिंग है या कोई भी इशू which is related to the environment and which is related to any kind of civic problem, तो उसके लिए आप अगर चाहें तो गवर्नमेंट नहीं सुन रही तो we can file a public interest litigation and my firm will totally do that without taking even a single pen. That is my contribution to the environment. Thank you. Turnaround Management Association. Now, Turnaround Management Association is a global organization which is existing in 56 jurisdictions worldwide. The objective of this organization is to, I'm heading the Indian chapter for that. The objective is to help out MSMEs across the globe in terms of whenever they get into stress. In India, we have an Insolvency Act which is applicable, and 75% of companies getting into the Insolvency Act are getting liquidated. The output or the revenue that can be covered from a liquidated company is around 6%, and from a company that is sold out within the insolvency process is almost 32%. So what can be done for the MSMEs? Are they only there to get into insolvency once they are in distress, or they can be helped out somehow or the other? So at Turnaround Management Association, we look at it in a very different way. Across the globe, you take Europe, ऑस्ट्रेलिया, आप यूएस ले लीजिए, साउथ अफ्रीका ले लीजिए, कोई भी ऐसा डेवलप कंट्री ले लीजिए, तो they give first preference to a turnaround of a company before it even getting into an insolvency, right? And how is that done? When we talk about insolvency, अभी सिद्धि वाले भी भाई साहब मौजूद हैं यहाँ पर, अभी एक MSME का framework निकाला है for restructuring. Again, it is only focusing on the financial restructuring of a company. Nobody is looking at the management side or the operational restructuring of a company, which is very important. So this organization that I'm heading, the Turnaround Management Association India, in short we call it TMA India. So TMA India is looking at providing these services to all MSMEs across India. We have set up almost one sub-chapter in every state to help them out. We are a very young organization. We are just 1.5 years old. And we have people on board who are very well known. We have CEO of ArcelorMittal as one of our board of directors. We have Mr. Changyok, who is a senior advocate and ex-Solicitor General of India.
and we have Harrison Malayalam, so a lot of people who are well known, and these people have been supporting us to help out MSMEs who are in distress. I have been going through a lot of things that these people have said across, the speakers have said. Mangala ji ne ye baat boli thi, that relation between academia and industry, right? So we are working upon that. We are working with Gurgaon University and OP Jindal University so that they can have an interaction with the industries and bring out the issues which are there within these two sectors. किसी ने भाई साहब ने बोला था इंटरेस्ट रेट्स की बात में. At this point in time, interest rates are almost equivalent. 7 to 8% is a going rate because of the higher increasing interest rate across the globe. Talk about US or UK, the interest rates have gone high. अभी अब यहाँ पर हमारे climate change की बात हुई थी. Then we are talking about ESG, environment, social and good governance. When we talk about this, and we talk about the Global Industrial Convention which is happening right now, all global funders, by the way, TMA has its own funding arms, wherein it has private equities, banks and private investors who are ready to fund distressed businesses in India. When we talk about ESG, the ESG compliance is very important for foreign investors. They will not invest in a company which is not ESG compliant. अभी ESG का concept बड़ा new है, बहुत नया है इस हिंदुस्तान के अंदर. But still, we need to be compliant with ESG if we want to get foreign investment in. Then there were a lot of other issues. Why these things keep on happening in India? Because everybody is looking at a negative cash flow. How do you get the funding? Funding can happen from two parts. Number one is it can be generated from within the company. If an insolvency professional or a resolution professional can generate funds when the company is insolvent, why can't the promoters with the help of our experts generate funds? At the time when bankers are also here, if we can convince them that our processes are fine now, they have been done through some sort of Lean Six Sigma or some other processes which is validating those processes, the bankers will almost come and give money to the company because they have validated those processes. So this needs to be taken care of by all the professionals. When we talk about turnarounds, we talk about 60% management, 20% accounting and 20% of law. Whereas in insolvency is 50% management, 50% of accounting and 50% of law. So we have to have a change in the mindset for this. With this I conclude. Please have a good life. Thank you. मैं मंच पर आसीन हमारे सभी स्पीकर्स का, खासकर हमारे मेंटोर, हमारे मॉडरेटर श्री जयंत मानवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने उद्योग जगत के इतने महत्वपूर्ण विषयों को हमारे सामने रखा, और आशा भी करता हूं कि हमारे सामने जो भी डिपार्टमेंट से लोग आए हैं वो उन पर पैनल डिस्कशन के बाद जब उनका पैनल आए तो उस पर अपना संबोधन दे दें। इस आयोजन के अंत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इस पैनल को सपोर्ट करने के लिए IDFC बैंक की टीम के लिए कि IDFC बैंक की टीम यहाँ मंच पर आए। उनका एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आई थिंक वो अभी नहीं है, नीचे चले गए हैं शायद। हमारे साथ हमारे इस प्रांगण में डोरसेट कंपनी के चेयरमैन श्री रमेश बंसल जी भी हैं। मैं जोरदार तालियों से आपका स्वागत करता हूँ सर। हमारे साथ अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स के चेयरमैन श्री अग्रवाल साहब भी आए हैं। मैं जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सभी उद्यमी साथियों से कि जब भी उद्योग जगत के इस तरह के आयोजन हो, आज जो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ अपनी प्रेजेंस दे करके, ये इंडस्ट्री की ताकत को दर्शाता है। शायद हम यही नहीं कर पाए, उद्योग जगत को सरकार से कुछ नहीं सही है सर। मैंने इतने समय में आज 4 सालों में इतना तो देख लिया सबके साथ रहते हुए कि उद्योगपति अपनी तरफ से सब कुछ देता है, चाहे वो रोजगार हो, सरकार को टैक्स हो, इवन जिस जगह को कदम रखता है वो जगह भी अपने आप सुधरनी शुरू हो जाती है। तो इंडस्ट्री का अपना इतना महत्वपूर्ण योगदान है देश को आगे बढ़ाने में। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हम लंच करेंगे अभी, और लंच के बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन है, इसके बाद हम उस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। हम इसके बाद अपना एक्सपोर्ट एंड प्रमोशन लॉजिस्टिक का एक सेशन करेंगे। रीजन मैं डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से ही निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी और
लॉजिस्टिक सर्विसेज में भी हमें आपकी बहुत हेल्प चाहिए। आज यहाँ एक्सपोर्टर्स भी आए हुए हैं, बुटीक इंटरनेशनल से हमारे साथ जयसिंह जी आए हुए हैं, जिनका सारा इंटरनेशनल वर्क ही है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका एक्सपोर्ट में वर्क है, उन्हें आपकी सब्सिडीज, आपकी सारी पॉलिसीज के बारे में जानकारी चाहिए। तो हमारे उस सेशन के बाद आप अपना सेशन कंटिन्यू करना ताकि आप उनके भी जवाब दे सकें।